Hello students, in previous classes we have discussed about the properties of alkali metals, chemical property of alkali metals, in which we have told about the halogen reaction with halogens, reaction with water, reaction with air and oxygen also. And approx 2 or 3 more reactions we have discussed. Today we are going to discuss about the compounds of alkali metals, means general characteristics of the compounds of alkali metals. तो इसमें हम लोग चलो देखते हैं general characteristics of compounds of alkali metals. ठीक है, तो अल्कली मेटल के जनरल कंपाउंड्स में का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है हम लोग ये देखते हैं। और हमारा फर्स्ट कंपाउंड है ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, oxides and hydroxides. As you know, alkali metals react with oxygen to form oxides, peroxides and superoxides. जिसमें आप लोगों ने देखा था कि lithium reacts with oxygen to form lithium oxides, whereas sodium reacts with oxygen to form sodium peroxide and other like potassium, rubidium and cesium. All these three metals are react with oxygen to form superoxides. So we can write here, if alkali metal from three type of oxides, three type of oxides. They are monoxide, peroxide and superoxide. ठीक है, ये तीन तरह के ऑक्साइड्स हमारे अल्कली मेटल्स बनाते हैं, जिसमें से लिथियम जो है वो मोनोऑक्साइड को फॉर्म करता है, लाइक इन the form of Li2O, whereas sodium form Na2O2 and superoxide, that is K2KO2, RbO2 and CsO2. ये तीन तरह के हमारे पास ऑक्साइड्स बनते हैं। तो इन तीनों तरह के ऑक्साइड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, नंबर 1 की अगर हम इसके कलर की बात करें तो ये कौन सा कलर देता है, तो आप समझो कि जो नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं और सुपर ऑक्साइड्स हैं, सॉरी पर ऑक्साइड्स हैं, ये दोनों क्या होते हैं, कलरलेस। वेयरएज सुपर ऑक्साइड्स जितने में हैं ये या तो येलो होते हैं या फिर ऑरेंज इन कलर। ठीक है, तो ये हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 1। आप यहां देखो अल्कली मेटल्स फॉर्म थ्री टाइप ऑफ ऑक्साइड्स इन विच मोनोऑक्साइड, peroxide and superoxide. Lithium always form monoxide, whereas sodium form peroxide, and all these three metals like potassium, rubidium and cesium, all these three are formed superoxides, in which monoxide and peroxide are colorless compound, whereas superoxides gives yellow or orange in color. Is that now? अब देखो लिथियम ऑक्साइड को अगर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, if we hydrolyze these oxides
form these oxides to form respective hydroxides ये क्या बनाते हैं, जब इन्हें हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड क्रिएट करते हैं। अब ये कैसे करते हैं आप इसको पहले कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन these oxides if lithium oxide reacts with water to form lithium hydroxide. Okay, but if sodium peroxide reacts with water to form respective hydroxide along with H2O2, that is hydrogen peroxide, is that थर्ड केस जो होता है वो होता है, मान लो हमारे पास KO2 है, मीन सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म 2KOH along with H2O2 and oxygen gas. Okay, so in this case we have seen here that if lithium oxide reacts with water to form lithium hydroxide, means only hydroxide. Okay, whereas peroxide क्या बनाता है, respective hydroxide along with respective hydroxide and hydrogen peroxide. Whereas this compound means सुपर ऑक्साइड्स, यहां पर कौन सा केस है, नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड, यहां पर कौन सा केस है, peroxide, और यहां पर कौन सा केस है, सुपर ऑक्साइड। मीन्स सुपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म respective hydroxide along with peroxide and releasing of oxygen gas. तो आपको याद क्या रखना है कि अगर नॉर्मल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर से तो ये क्या बनाता है, नॉर्मल हाइड्रोक्साइड। peroxide react with water to form hydroxide along with peroxide, and superoxide react with water to form respective metallic hydroxide along with peroxide and releasing of oxygen gas. Copy it now. Now इसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको जो याद रखने हैं वो ये हैं कि these obtained hydroxides are white crystalline solid and
These obtained hydroxides are white crystalline solid and are strongest base. स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होते हैं? बेस। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि दी हाइड्रोक्साइड्स are more soluble in water and these hydroxides are more soluble in water and evolve hydrogen gas These hydroxides are more soluble in water and evolve much energy, not hydrogen gas, much energy कब? जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है, when they are hydrolyzed। जब इन्हें हाइड्रोलाइज किया जाता है तो ये क्या होते हैं? वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये क्या एग्जिट करते हैं? मच एनर्जी एग्जिट करते हैं। मींस व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? एक्सोथर्मिक। ओके। और इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट लिथियम ऑक्साइड। ओके, दिस इज एक्सेप्शन केस। Next is the basic character of hydroxides increases on moving down the group due to increase in MO bond। अब बताओ ये MO बॉन्ड क्या है? एमओ बॉन्ड क्या है? एम तो हो गया मेटल, जो हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम है। एम और ऑक्सीजन बॉन्ड, जो OH बॉन्ड बनेगा, तो इनके मेटल और ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से इनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो भी क्या हो जाता है? इंक्रीज। ठीक है, कॉपी इट नाउ। Okay, our next compound is carbonate and bicarbonate of these alkali metals. Next compound is carbonate and bicarbonate of these alkali metals। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट इन अल्कली मेटल्स के किस तरह से रिएक्ट करते हैं और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? तो नंबर 1, पहली बात, अगर हम बात करें कार्बोनेट की, देखो कार्बोनेट्स, all carbonates are thermally stable। मीन्स हम लिखेंगे कि
the carbonates of alkali metals are, क्या होते हैं ये, थर्मली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? थर्मली स्टेबल होते हैं, एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। यहां भी लिथियम कार्बोनेट जो है ये क्या है? एक्सेप्शन केस। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आप इसमें लिख लोगे, बिकॉज ओनली लिथियम कार्बोनेट कैन डिकम्पोज ऑन हीटिंग। केवल लिथियम कार्बोनेट ही होता है जो डिकम्पोज हो जाता है हीट करने के बाद। कैसे डिकम्पोज होता है? लिथियम carbonate in solid state, it decompose into, if we heat the lithium carbonate, it decompose into lithium oxide and carbon dioxide gas. This is in solid state and this is in gaseous state. केवल लिथियम कार्बोनेट ही इसमें डिकम्पोज होता है, लिथियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। वेयर एज आप यहां पर लिख लोगे कि नो एनी अदर कार्बोनेट ऑफ अल्कली metals are decomposed as. All these are the characteristics of alkali metals. Copy it. Okay. अगर हम बात करें कि इनके थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर की, तो आप लिख सकते हो कि क्या लिख सकते हो? थर्मल स्टेबिलिटी of these carbonates are as lithium carbonate Li2CO3 is less stable, ये थर्मली कम स्टेबल होगा। किससे? सोडियम कार्बोनेट से। Na2CO3 is less, पोटेशियम कार्बोनेट Li2CO3 is less than Na2CO3, less than K2CO3, is less than Rb2CO3 and CS2CO3. Is that why? Reason, if we want to rate as the electropositive character, बताओ क्या होगा? Electropositive character increases on moving down the group, the stability of these carbonates also increases. पर जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो, समझो आप इस बात को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम,
टॉप टू बॉटम जैसे आप मूव करते हो क्या होता है, इनकी साइज इंक्रीज होती है। साइज इंक्रीज होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन को, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, मतलब पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, और पॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा तो उनकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो आप इसको कॉपी करो। लिथियम एक्सेप्शन केस है, लिथियम के बारे में हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको लिख लो। ये वाला तो लिख चुके हो आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की। डन, ओके। ये तो ही बात कार्बोनेट की। अब चलते हैं हम अपने अगले कंपाउंड की तरफ जो है बाइकार्बोनेट। क्या है, बाइकार्बोनेट। तो देखो बाइकार्बोनेट में क्या होता है, that bicarbonates are obtained only in aqueous solution। नंबर एक क्या कि बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली metals are obtained in aqueous solution। पहली बात, बाइकार्बोनेट अल्कली मेटल के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो कैसे होते हैं, aqueous सॉल्यूशन में ही ऑब्टेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। बिकॉज नहीं लिखते आप, यहां पर लिखो दे डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट exist in solid state। ओके, ये तो हुई हमारी पहली बात। बात नंबर 2, these carbonates when these carbonates, जब इन कार्बोनेट्स को हीट किया जाता है, इज हीटेड, जब इन कार्बोनेट को हीट किया जाता है मीन्स इसमें हीट एनर्जी दी जाती है, तो ये हमें क्या देते हैं, इट गिव्स रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स which again hydrolyzed to give जो फिर से हाइड्रोलाइज होकर और क्या देते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखो रिएक्शन इज एज MHCO3 का होल ट्वाइस, इफ इट इज हीटेड it gives respective carbonates M2CO3 along with water and carbon dioxide gas। This M2CO3 यहां एक बात और छूट रही है। अगर आप इनका ऑर्डर चेक करो तो वो ऑर्डर क्या बनेगा, लिथियम बाइकार्बोनेट LiHCO3
whole twice will be less than NaHCO3. Then potassium bicarbonate, then rubidium bicarbonate, and then cesium bicarbonate. Is that? यहाँ एक बात और, पहले आप इसको लिख लो, फिर हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं. Then these bicarbonates are, देखो इनकी एक छोटी सी और प्रॉपर्टी होती है. वो क्या है कि these bicarbonates are less soluble in water. इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस सोल्यूबल होते हैं. किसमें? वाटर में. किससे? देन कार्बोनेट्स and they can be precipitated by passing the excess of carbon dioxide gas. जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बोनेट्स में कार्बोनेट्स में पास कराते हैं तो वो वहां से हमें क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट. किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा? कैल्शियम, सॉरी नॉट कैल्शियम, रेस्पेक्टिव मेटेलिक बाइकार्बोनेट के. रिएक्शन देखो समझ में आएगा. मान लो NO2CO3 है. इसका रिएक्शन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो ये हमें क्या देगा? 2NaHCO3 का precipitate. Is that? And this precipitate 2NaHCO3 is heated and provide again Na2CO3 along with water and carbon dioxide. अब क्वेश्चन इज दैट कि फिर हम इससे जब सेम चीज मिल रहा है तो हम ऐसा क्यों करेंगे? हाँ करेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये aqueous सॉल्यूशन में है और यहाँ हमें जो मिलेगा ये सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, मींस एनहाइड्रस. क्लियर है ना? तो ये चीज एनहाइड्रस का सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन करने के लिए ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है. मींस इन द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज if we react the respective metallic carbonate, it gives metallic bicarbonate, precipitate of metallic bicarbonate, and this precipitate of metallic bicarbonate is again heated to get anhydrous respective metallic carbonate. Is that? Copy it now. Our next कंपाउंड इज हैलाइड ऑफ अल्कली मेटल्स. अल्कली मेटल्स के हैलाइड क्या करते हैं? ऑल अल्कली मेटल्स फॉर्म रेस्पेक्टिव मेटालिक हैलाइड. जैसे आप लोग पढ़े हो मेटालिक हैलाइड लाइक लिथियम हाइड्राइड, सॉरी LiCl, NaCl and KCl, RbCl and
CaCl। ये सब क्या बनाते हैं, कुछ इस तरह के आपके पास हैलाइड्स बनाते हैं। हैलाइड्स दैट इज, हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं? हैलाइड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से कोई भी हो सकता है, LiF, NaF, KF, RBF एंड CaCl। These halides are formed by the action of oxide and hydroxides of these metals with aqueous solution of hydroxide halide। Means अगर हाइड्रोक्साइड, अगर हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये हाइड्रोजन के किसी हैलाइड से रिएक्ट करता है तो बताओ क्या बनेगा? अगर हम यहाँ M ले लें, सोडियम की जगह हम क्या ले लें? मेटल, कोई भी मेटल हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि सोडियम ही होगा, आप यहाँ पर M ले लो। मान लो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, इनमें से कोई भी हो सकता है। MOH मींस अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, ये हाइड्रोजन के हैलाइड से रिएक्ट करते हैं, तो ये बताओ क्या बनाएंगे? MX along with H2, MX बनाएंगे, मेटालिक हैलाइड बनाएंगे, और क्या बनाएंगे? वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब देखो M दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड। मान लो हमें NaCl बनाना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन मैं किससे करा दूंगा? हाइड्रोजन क्लोराइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड से कराऊंगा तो बताओ क्या बनेगा? NaCl बनेगा along with H2O लिक्विड। समझ में आ रहा है? अब मींस जिसके रेस्पेक्टिव हैलाइड्स हमें बनाने हैं, उसके हाइड्रोक्साइड को अगर हाइड्रोजन के उस हैलाइड से हम रिएक्ट करा देते हैं तो ऑलरेडी हमारा रेस्पेक्टिव मेटालिक हैलाइड बन जाता है। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? आप जानते हो, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में आप लोग पढ़ चुके हो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा FH0। Enthalpy of formation of halide of all alkali metals are highly negative. This is the property। alkali metals की जो alkali halide of alkali metals होते हैं, जितने भी alkali metal के halides होंगे, उनका enthalpy of formation क्या होगा? highly negative होगा। That is, on moving down the group, the enthalpy of formation of fluoride become more negative, whereas all other halides enthalpy of formation become less negative। and this is the most important points। क्या होता है? जो फ्लोराइड्स हैं, फ्लोराइड्स ये क्या होंगे? मोर नेगेटिव होंगे, और बाकी जितने भी होंगे अदर हैलाइड्स enthalpy of for other halides enthalpy of formation become less negative। ऐसा क्यों होगा? on moving down the group enthalpy of formation क्या होता है? decrease। on moving down the group the enthalpy of formation of fluoride become more negative, whereas for other halides enthalpy of formation become less negative। copy it। and this is our last। इसके बाद भी होते हैं, जैसे सल्फाइड्स हैं, नाइट्राइड्स हैं, उसमें भी एक्सेप्शन केस होते हैं, बट ऑल दीज आर आउट ऑफ आवर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस ऑन दिस। कभी किसी में आ गया तो डिस्कस कर लेंगे हम इस पर भी, कि इनके सल्फाइड्स, इनके नाइट्राइड्स किस तरह से रिएक्शन करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, लिथियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जो नाइट्रोजन के साथ मिलकर के और लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी कोई भी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो नाइट्रोजन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं कर सकते। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानते हो तो ये जान लो, लिथियम इज ओनली वन अल्कली मेटल which can react with nitrogen directly, and other alkali metals like sodium, potassium, rubidium and cesium they cannot react with nitrogen directly। is that? तो उस पर हम लोग डिस्कस फिर कभी कर लेंगे। हाल फिलहाल इसको आप कॉपी कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।